Welcome to this module on CSF examination. Now, please understand that CSF examination शायद आपको लग रहा होगा that this is quite something that you can ignore और ज़्यादा important नहीं है, इसमें से हमको information ज़्यादा नहीं मिलता है clinically. But to be very honest, if you know the entire of this topic, if you know the details of this topic, CSF examination does give a lot of information. ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यू कैन रिवील फ्रॉम दिस CSF if you know how to interpret it. As a pathologist, we focus mainly on looking the cell type and the cell count. That is our main focus because the chemical part, the biochemistry wala part, it is not something that is under our scope. But see, when a patient comes to you, I want to tell you this that ठीक है, हमारे रेजिडेंसी में we are only looking for the cell count and cell type. लेकिन as a clinician or as a person, as a doctor, when a patient will come to you, you have to know everything about that CSF. उसका जो biochemical profile है, that also you have to know that what are the changes that can happen. आपको एक CSF सैंपल से अगर आपको पूरी तरह से सारे के सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना है एक CSF सैंपल में से, तो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि किस कंडीशन में क्या हो सकता है. इवन द माइनर अपीयरेंसेस, द निटी ग्रिटी डिटेल्स, सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप एक CSF सैंपल को डायग्नोस कर पाओगे सही तरीके से विदाउट मिसिंग आउट ऑन दैट. ठीक है, तो जो आपको जो कैपेबिलिटी है, यू नो, द होल्ड ओवर एवरी टॉपिक, क्लिनिकल टॉपिक, दैट विल हैव टू बी देयर. ओनली देन यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पैथोलॉजिस्ट और अ सक्सेसफुल डॉक्टर. क्योंकि देखो यार, एग्जाम में तो शायद आपको ज़्यादा क्वेश्चंस वाइवा इसमें से नहीं पूछेंगे, लेकिन जब आप बाहर प्रैक्टिस करने जाओगे तब अगर आपके पास में एक सैंपल आता है तो फिर आप क्या करोगे? बस उसका प्रोसेसिंग करके सेल काउंट, सेल टाइप दे दोगे, या फिर आप पूरा स्पेक्ट्रम को एनालाइज करोगे एंड यू अराइव एट अ डायग्नोसिस एंड हेल्प योर क्लिनिशियन और द ट्रीटिंग फिजिशियन टू नो बेटर थिंग्स. ठीक है, तो this video will aim to clear all your doubts regarding this particular topic, and I am very sure after watching this video, CSF examination will be crystal clear to you and you will not miss out on any patient or any sample. Just go with the flow of the video, just keep absorbing things and just listen to it like a story. कि एक पेशेंट तुम्हारे पास में आया है CSF सैंपल लेकर के. अब पहली बात बताओ कि CSF सैंपल का कंपोजिशन, नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ अ CSF? क्या क्या मिलता है वहाँ पे? CSF क्या है? व्हाट इज दैट एक्चुअली? इट इज बेसिकली एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ द प्लाज्मा विच इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रेशन, राइट? इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स एंड देयरफॉर बेसिकली we draw it to have some information regarding, you know, from that sample about any kind of infection, meningitis, इस तरह का चीजें. व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ अ CSF? CSF क्यों हम लोग करते? पहली दफा कि CSF हम करते, एग्जामिनेशन ऑफ CSF हम करते टू सी if there is any kind of CNS infection. That is the primary aim कि हमको CSF infection we have to diagnose. That is why we are doing the CSF examination. But please understand that meningitis में ये what is the meaning of this infection? Meningitis. तो meningitis में what are the different types? I'm going very, you know, I'm trying to interconnect the topics, so please listen to me carefully. If you are talking about meningitis, किस तरह का होता है? एक होता है तुम्हारा bacterial, एक होता है तुम्हारा fungal, then tuberculous, then viral, all of these types. Now please understand that meningitis में CSF ये वैल्यूज जो है, जो हमारा ग्लूकोज का वैल्यू है, जो प्रोटीन का वैल्यू है, उसके बेसिस पर हम मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करते हैं, राइट? बट इज देयर एनी रोल ऑफ सेल टाइप? क्या हम ये बोल सकते हैं कि मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हमको ये सेल मिलेगा और वायरल में हमको ये सेल मिलेगा? कैन वी से दैट? Definitely we can say that. Yes, you're right. So bacterial meningitis में even pathologist has a role. Yes, the cell type present in bacterial meningitis is neutrophils, and the cells present in viral meningitis is lymphocytes and monocyte and plasma cell. ठीक है, so are you understanding कि कितना कॉन्सेप्चुअल है ये चीज़ें? तो बता दो मुझे कि CSF का एग्जामिनेशन हम लोग क्यों करते हैं? टू सी इन्फेक्शंस, टू सी whether there is any leukemia or malignancy. Yes, of course, in cases of ALL you have something called as CNS involvement, right? And you see that we do this examination, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको blast मिलेगा. Yes, in CSF you will be able to see blast. You will be able to see a lot of different cells, and there will be a lot of other cells which will be confusing for you. ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ अभी के अभी. प्लीज लुक एट दिस इमेज. ये देखकर आपको क्या लग रहा है? प्लीज लुक एट दिस इमेज. ये देखकर आपको क्या लग रहा है? दिस इज अ CSF सैंपल. व्हाट आर दिस सेल्स? क्या है ये सेल? क्या ये ब्लास्ट है? क्या ये मतलब व्हाट नॉर्मल है? व्हाट इज दिस? ठीक है, तो we'll come back to this, but I wanted to tell you that the importance of understanding this part carefully. ठीक है, तो any kind of inflammatory diseases, leukemia, malignancy, neoplasm, हर तरह की चीज़ें जो है इसके लिए हम लोग करते हैं CSF examination. But
आई वांट टू टेल यू व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ लंबर पंक्चर. CSF सैंपल कलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ लंबर पंक्चर. तो लंबर पंक्चर के ओवरऑल इंडिकेशंस क्या है? एक तो है हो गया हमारा CSF का एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग लंबर पंक्चर करते हैं, बिकॉज बाय दैट प्रोसेस वी टेक आउट द सैंपल. दैट इज तो देयर. बट व्हाट आर द अदर इंडिकेशंस? द अदर इंडिकेशंस इज टू रिड्यूस CSF pressure in cases of benign intracranial hypertension. So this is not only diagnostic, this is also therapeutic in some cases. So lumbar puncture हम लोग सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं करते, कभी कभी हम लोग उसको थेरेप्यूटिक के लिए भी करते हैं, to reduce the CSF pressure. Also for administration of medications we do this. Also for induction of radiographic contrast for myelography. These are the indications of lumbar puncture as a whole. Now if I come back to the process of collection of a CSF, what is that process? Lumbar puncture कहाँ पे करते हैं? We do it at the position of L3, L4 or L4, L5. Why? क्यों करते हैं? Because see, there is something called as the conus medullaris, जो कि this conus medullaris ends at L1, L2 or L2, L3 in the adults. So it is ending at L2, L3 मान लो, तो हम लोग वहाँ पर नहीं कर सकते. We have to do the CSF, we have to do the puncture little below that, so that we are not injuring the conus medullaris, and therefore we do it one level below the point where it is ending. It is ending at L2, L3 and we are doing it at L3, L4 and preferably L4, L5. In the children, the conus medullaris is kind of extending a bit below up to L1, L2, and therefore we are doing the puncture at L4, L5 to be extra precautious. Okay, so that is very very important. तो क्या करते, पेशेंट का एक पोजीशन होता है जहाँ पर दिस इज द पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक बोन मैरो एस्पिरेशन. ठीक है, तो ये पेशेंट का जो पोजीशन है, कैन यू सी इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लाइक अ बोन मैरो एस्पिरेशन का पोजीशन. ठीक है, तो लैटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन में with the back absolutely vertical and at the edge of the bed with the knees drawn up and the head flexed onto the chest. The position increases the spaces between the lumbar vertebrae and the patient may be also sitting. That's also fine. Okay, so what we do is that we have to first do an antiseptic preparation of the skin, and then after that we will be inserting the needle in the needle has to reach the subarachnoid space, and once it reaches it will give a sudden give or a loss of resistance will be felt, just like how you feel in case of bone marrow aspiration. Almost similar kind of loss of resistance will be felt, and then the stylet is removed. Once that feeling is there, you remove the stylet and then drop by drop the CSF will flow and you'll collect that in a vial. But please do not draw the CSF. Please never ever draw the CSF. See, the CSF should never be drawn with a syringe. वो automatic आपके it will fall drop by drop. It is allowed to fall in the collection tube drop by drop. Typically 3 to 5 ml is collected. After collecting, very very important, whenever you are done with the collection of the CSF, now please replace the stylet inside the needle. Once you remove the stylet, if you are able to understand, this is the lumbar puncture needle and this is the stylet. राइट, तो ये अंदर में है, आपको नहीं दिख रहा है, वो अंदर में होता है जो आप रिमूव कर दोगे एंड यू आर गोइंग टू कलेक्ट द CSF. आफ्टर कलेक्टिंग प्लीज पुट दिस स्टाइलस बैक इनटू द नीडल. राइट, व्हाई? क्यों? बिकॉज इफ यू डू नॉट डू दैट, इफ यू जस्ट रिमूव इट लाइक दैट, देयर मे बी entrapment of nerve root. ये बहुत sensitive areas है ना, तो if you are just leaving a blank space inside the needle and you're not putting the stylet, you're just pulling that syringe out, then what will happen is that there may be entrapment of the nerve root. तो इस हिसाब से फिर हेडेक भी हो सकता है, CSF लीकेज भी हो सकता है, क्योंकि पता है ना कि CSF लीकेज की वजह से बहुत ही ज़्यादा पोस्ट CSF प्रोसीजर में क्या होता है कि you have very सीवियर हेडेक, पोस्ट पंक्चर हेडेक जिसको हम बोलते हैं. Why does it happen? Because you're taking out the CSF at a rate which is faster than its production. ठीक है, तभी ये हेडेक होता है. तो अगर इफ यू आर नॉट डूइंग इट लाइक दिस, तो CSF लीकेज ज़्यादा होगा, इसीलिए हेडेक भी हो सकता है. सो ऑल दिस, बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रिकॉशंस, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. राइट, नाउ वंस यू कलेक्टेड द CSF, वो किस किस ट्यूब में जाएगा? ये 4 ट्यूब में जाएगा, ट्यूब 1, 2, 3 एंड 4. क्यों इस तरह से हम इसको लेबलिंग किया हुआ है, ये भी हम तुमको बताएंगे. जस्ट लिसन टू दिस. सो इन ट्यूब 1 यू आर गोइंग टू गिव द केमिस्ट्री और द बायोकेमिस्ट्री वाला सेक्शंस लाइक ग्लूकोज एंड प्रोटीन फॉर द एस्टिमेशन, यू आर गोइंग टू गिव दैट, एंड ऑफ कोर्स सेरोलॉजी एज वेल. नंबर 2 में यू आर गोइंग टू डू द माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसीडियर्स लाइक ग्राम स्टेनिंग एंड ऑल. ठीक है, 3 इज हमारा ठीक है, ये वाला हमारा काम है विच इज द हेमाटोलॉजी, जहाँ पे हम लोग टोटल सेल काउंट एंड डिफरेंशियल काउंट करते हैं. नाउ द पॉइंट इज, by the time you reach the tube 3, now the contamination is reducing.
राइट, एंड देयरफॉर द ट्यूब 3 इज बीइंग सेंट फॉर हेमाटोलॉजी, लास्ट में, ऑलमोस्ट लास्ट में, क्योंकि देखो फोर्थ में तो है साइटोलॉजी और स्पेशल स्टेन्स इफ रिक्वायर्ड, तो कभी कभी हम लोग जो फोर्थ है वो होता भी है, नहीं भी हो सकता है, बट 3 इज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट द लास्ट, सेकेंड लास्ट वाला ट्यूब। यहाँ पर तुम्हारा कंटामिनेशन इज रिड्यूस्ड एंड यू नो बिकॉज यू आर डूइंग द सेल काउंट एंड सेल टाइप, देयरफॉर you have to have the CSF, you know, the cells which are intrinsic to that particular sample. Okay, there should be no contamination, absolutely, because here every cell that we see counts, हर एक सेल का एक अलग ही मीनिंग होता है एंड द सेल स्पीक्स टू यू, कोई भी कंटामिनेशन कैन एक्चुअली चेंज योर रिपोर्ट, इसीलिए हम लोग इसको थर्ड में लेते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू अ पॉइंट कि ये तो आपको पता ही है कि व्हेनेवर यू डूइंग या पंक्चरिंग द नीडल, क्या क्या लेयर्स है जो पियर्स करके अंदर जा रहा है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, ligament, epidural space, dura mater, subdural space, arachnoid matter and subarachnoid space हो गया। Now what are the complications? I am already done with the first one, which is called as the post puncture headache. Now very important is that why does it happen? I have mentioned already that it is because of the leakage of CSF at a rate which is faster than the rate of production। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? We can use a small bore needle, ताकि वो जो लीकेज ऑफ CSF हो रहा है दैट इज रिड्यूस्ड, है ना, तो इसलिए हम लोग स्मॉल बोर नीडल यूज करने वाले हैं। एंड वी विल बी ऑल्सो रिप्लेसिंग द स्टाइलेट, एज आई मेंशन प्रीवियसली, यू हैव टू रिप्लेस द स्टाइलेट बिफोर यू विथड्रॉ द नीडल। ऑल दिस विल प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ complication, and you also have to keep the patient flat after the procedure for 2 to 3 hours to reduce the risk of the headache. Next is that there can be complication of infection, there may be subdural hematoma, there may be a dry tap as well if the positioning is not correct, if there is some kind of spinal block or something, then even there can be dry tap, and there can also be herniation of the brain through tentorium, very very important. That is why if the intracranial pressure is high, we avoid doing the CSF, we avoid this procedure if the intracranial pressure is high, and therefore you have to measure the opening pressure of the CSF, वो हम बताएंगे whenever you, I haven't started yet with the examination of the CSF properly, so once I start that you will realize that opening pressure is something which we measure, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा है ना then we do not actually take much of the CSF out, क्योंकि वहाँ पे एक रिस्क होता है, risk of herniation of the brain through the tentorium, very very important, and this can damage the brain stem and this can be fatal, तो ये बहुत ध्यान से आपको करना है। Now what are the contraindications? Obviously I mentioned this, that if you have raised intracranial pressure due to any space occupying lesion, you have to avoid that. In cases of cardiorespiratory compromise, bleeding diathesis, local infection, आपको ये avoid करना है, very important. Now let's come to the most important part, which is the laboratory examination of cerebrospinal fluid. Now starting with this very important topic, which is the laboratory examination of cerebrospinal fluid, please understand that whenever you collect the sample, you have to process and examine it within 1 hour of collection. Very very important, because if you are doing it later, the cells will disintegrate, there will be reduction in the glucose level because of glycolysis. So because of all these things, you have to do it within 1 hour. Okay, now what are the basic examination points? क्या क्या आप basically examine करोगे इसमें? एक तो है तुम्हारा opening pressure, which I have already spoken about, then appearance, ठीक है, then the total and differential count, ये बड़ा देखकर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये हम लोग का डोमेन में आता है maximally, then chemical examination, microbiological examination and spatial investigations. तो चलिए हम let's take up each of this topic and let's just tell you कि each of these points कितना information provide करता है यार, किसी भी तरह का test, if you know it to the depth, you will be surprised to see how each of these tests literally yields so much information regarding the patient. ठीक है, हमारे कंट्री में ना डायग्नोसिस को बड़ा लाइटली लिया जाता है, डायग्नोसिस इज नॉट विच इज प्राइमरली फोकस्ड इन आवर कंट्री, इसीलिए पेशेंट्स भी लोग सफ़र करते हैं, ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोसिस के बिना कोई ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो सकता किसी का। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ओपनिंग प्रेशर। प्लीज अंडरस्टैंड द नॉर्मल ओपनिंग प्रेशर कितना है, 60 to 180 mm ऑफ वाटर in the lateral recumbent position. तो क्या, what is the procedure? That you are attaching the manometer to the hub of the spinal needle. The patient's leg will be gently extended and returned. तो जो position आपने create किया था ना पहले लेते वक्त, CSF लेते वक्त, तो you have to return that position to the normal positions. The patient leg will be extended because they were flexed previously and now the neck ऐसा था पहले, तो आप थोड़ा बहुत neutral position में हम उसको लाएंगे, ठीक है। उसके बाद we will be measuring the CSF pressure, ठीक है, and the patient should not be in tension, should not be straining or breath holding, because the patient should be completely relaxed, because all this will increase the CSF pressure, ठीक है।
So what are the causes? Obviously tense and anxious patient, intracranial mass, meningitis, subarachnoid hemorrhage, congestive cardiac failure, and all of this. Decreased pressure can be seen in cases of leakage of spinal fluid following trauma or lumbar puncture or complete spinal block. Now please understand that if the CSF pressure is more than 200, I have mentioned what is the normal range, 60 to 180. So if it is more than 200, then please do not take out much of the CSF. नॉर्मल आप कितना ले सकते थे? 3 to 5 ml ऑफ CSF आप ले सकते थे, लेकिन अगर CSF का प्रेशर है मोर देन 200 तो आपको कितना लेना चाहिए? यू कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 1 to 2 ml ऑफ CSF, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, ठीक है? तो अगर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा? herniation of the brainstem, ठीक है? Now what is the gross appearance? Very important. gross में क्या होता है कि normally CSF is clear and colorless like distilled water. It does not clot because अगर clot हो रहा है तो what does that mean? It means there is increased protein, ठीक है? तो अभी आप हमको बताओ that this is the basic normal color, but there is, if you get turbid CSF तो फिर क्या हो सकता है? Leukocytes can be high, red cells can be high, microorganisms can be present, raised proteins can be there, okay? नेक्स्ट इज ब्लड मिक्स्ड, ऑब्वियसली ट्रोमैटिक टैप, इसमें आपको ब्लड मिक्स मिलने वाला है, एंड ऑल्सो इन केसेस ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमरेज. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रोमैटिक टैप एंड द सब एरेक्नॉइड हेमरेज. इन दोनों के बीच में इफ यू गेट अ सैंपल विच इज अ ब्लड मिक्स्ड CSF, तो अभी आप हमको बताओ, कैन यू डिफरेंशिएट, like do you know how to differentiate whether that blood mix sample is of a traumatic tap or it is because of subarachnoid hemorrhage? Because in both these cases you're going to get blood mixed CSF. तो डिफरेंस क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको अभी आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि देयर इज अ टेबल विच शोज द डिफरेंसेस बिटवीन अ ट्रोमैटिक लंबर पंक्चर एंड अ subarachnoid hemorrhage. क्योंकि in both these cases you are going to get blood mixed CSF, ठीक है? तो अभी आप देखो यहाँ पे दैट ग्रॉस अपीयरेंस में इन द ट्रोमैटिक पंक्चर में क्या होगा, द ब्लड विल बी मोर इन द इनिशियल ट्यूब एज कंपेयर टू द लेटर ट्यूब, ठीक है? तो इनिशियल ट्यूब में ज़्यादा ब्लड होगा एंड लेटर में कम हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रोमा था, तो पहले ही जो आप फील करोगे इसमें ज़्यादा ब्लड आएगा, ठीक है? एंड द ब्लड विल ऑल्सो क्लॉट ऑन स्टैंडिंग. But in cases of subarachnoid hemorrhage, the blood will be uniform. All the tubes, same amount of blood will be there, and the blood will not clot on standing. Second, the supernatant will be clear in cases of traumatic lumbar puncture, but in cases of subarachnoid hemorrhage, it is going to be pink or yellow, which is called as xanthochromia. Very important, very very important. ये एकदम ही related interlinked terms है, ठीक है? माइक्रोस्कोपी में आपको क्या मिलने वाला है? रेड सेल क्लम्स मिलने वाला है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द रेड सेल काउंट इन द लेटर ट्यूब्स, ठीक है? जैसे मैंने बताया हुआ है, इन द ट्रोमैटिक पंक्चर इन द subarachnoid hemorrhage द रेड सेल काउंट विल बी यूनिफॉर्म इन ऑल द ट्यूब्स, ठीक है? नाउ लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर D-dimer will be positive in subarachnoid hemorrhage. The CSF pressure will be increased in subarachnoid hemorrhage and the CSF, because obviously ना, क्योंकि ये जो हम लोग ने ट्रोमैटिक पंक्चर किया है ये तो हम लोगों ने किया है, ठीक है? तो CSF प्रेशर इज नॉर्मल, लेकिन subarachnoid hemorrhage में वो पहले से ही वो हेमरेज था, इसलिए there is an increase in the CSF pressure and the protein will also be increased, ठीक है? तो सारे ही पैरामीटर्स जो है यहाँ पर डिरेंज है एंड दैट पॉइंट्स आउट टू subarachnoid hemorrhage. यहाँ पर इफ यू कैन सी दिस इज द क्लियर CSF, दिस इज ब्लडी CSF, एंड आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन इफ यू सी दैट द अपर पोर्शन इज क्लियर, यहाँ पर आप देख सकते हो द अपर पोर्शन इज क्लियर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रोमैटिक टैप. बट इफ द अपर पोर्शन इज येलोइश, what is this? This is subarachnoid hemorrhage. And what is this? This is the turbid CSF, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा appearance, right? So what is xanthochromia? Just now I mentioned it is present in cases of subarachnoid hemorrhage. It is yellowish discoloration of the CSF. Now क्यों होता है ये? इसलिए होता है, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है. RBC जो है ना, RBC वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो हेमोलाइज्ड हो जाता है एंड दैट गिव्स राइज टू ऑक्सीहेमोग्लोबिन. अभी ऑक्सीहेमोग्लोबिन में फर्दर इट विल गेट कन्वर्टेड टू बिलीरुबिन बाय द मैक्रोफेजेस. तो अभी बिलीरुबिन जो है ये तुम्हारा येलो कलर देने वाला है, क्लियर है? ठीक है? So now there can be other causes like jaundice, or if the CSF protein is more than 150 very high, there also there can be xanthochromia. हो गया है क्रॉस अपीयरेंस. नाउ लेट्स कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि xanthochromia को आप देखोगे कैसे? वैसे तो आप विजुअल इंस्पेक्शन करोगे, येलो है, लेकिन एक और आइडियल मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जहाँ पर भी आप इस चीज़ को कंप्लीटली कन्फर्मली बोल सकते हो कि हाँ ये xanthochromia ही है, ठीक है? व्हाट आर द अदर कलर्स दैट यू कैन गेट? अदर एबनॉर्मल कलर्स, पिंक, right, in cases of red cell lysis, brownish in cases of meningeal metastatic melanoma,
ठीक है, जस्ट लुक एट दिस वेरिएशंस. ऑरेंज हाई कैरोटीन इंजेक्शन, रेड ऑरेंज रिफम्पिसिन. रिफम्पिसिन जब आप लोगे ना, बॉडी का हर एक जो फ्लूइड है ना वो कलर चेंज हो जाएगा उसका, वो रेड ऑरेंज कलर का हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज योर क्लॉट फॉर्मेशन. तो यहाँ पर हम अपीयरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वी आर रीडिंग अबाउट द ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ CSF. तो एक तो हो गया कलर के बारे में हम लोगों ने बता दिया है तुमको. अभी हम बताने वाले हैं क्लॉट फॉर्मेशन के बारे में. तो यहाँ पर क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन डजंट हैपन इन नॉर्मल CSF. आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ. सो व्हाट हैपेंस, व्हाई डू वी गेट क्लॉट फॉर्मेशन? इट हैपेंस व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोटीन्स व्हिच इज मोर देन 150 mg/dl. कहाँ पे होता है? ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में होता है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलता है तुमको व्हिच इज कॉल्ड एज द कॉबवेब लाइक क्लॉट. ठीक है, ये है तुम्हारा एक क्लॉट. इसका एक नाम भी दिया हुआ है बिकॉज अ फाइन cobweb like spider web like of clot that you are going to get because of high fibrinogen content. ठीक है, ये एकदम कैरेक्टरिस्टिक है. हालांकि इसके अलावा यू मे ऑल्सो गेट क्लॉट इन केसेस ऑफ पुरुलिन मेनिंजाइटिस, स्पाइनल ब्लॉक, ऑल दिस थिंग्स. बट ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जो है तुमको याद रखना है, ये MCQ में भी आता है. अब ये क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो सब अरेक्नोइड हेमरेज में नहीं होगा. आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड इट हियर दैट क्लॉट डज नॉट हैपन एंड दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट इन फैक्ट फ्रॉम द ट्रॉमेटिक पंक्चर, बिकॉज द ट्रॉमेटिक पंक्चर will clot on standing but SAH will not clot on standing. So this is a very very important point to differentiate. ठीक है. Now let's come to the main purpose, the main point which is the cell count in the CSF. very very important. Now cell count के बारे में मैं तुमको पहले ही बता देती हूँ कि जो फ्लूइड एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं ना, नॉर्मल फ्लूइड एग्जामिनेशन, इसके बारे में एक वीडियो भी है in my channel. You must have seen that video. In that I have told you, I have explained to you how you are going to count the cell count कैसे हम लोग यूजुअली करते हैं, जिसका टॉपिक है फ्लूइड एग्जामिनेशन. देख लेना इस वीडियो के अंदर में, वो दिया हुआ है इस वीडियो में. ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ दैट CSF जो एग्जामिनेशन है, दैट द काउंटिंग ऑफ द CSF इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फ्लूइड एग्जामिनेशन. ठीक है, तो किसी भी तरह का फ्लूइड, एनी फ्लूइड, व्हेन यू आर काउंटिंग, यू डूइंग द सेल काउंट इन एनी काइंड ऑफ फ्लूइड, इट इज एवरीथिंग इज सेम. ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको सेल काउंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट इज देयर ऑलरेडी इन दैट वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल. ठीक है, सो आप वहाँ से उसको देख लो. ये नॉर्मल काउंट है, कैसे करते हैं, न्यूबर्स चैम्बर में करते हैं, ये तो सबको पता है. एंड आई हैव आल्सो शोन यू द कैलकुलेशन ओवर देयर. बट हियर व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन आल्सो यूज अ डिफरेंट काउंटिंग चैम्बर व्हिच इज कॉल्ड एज द फ्यूक्स रोजेंथल काउंटिंग चैम्बर बिकॉज इट इज द डेप्थ इज ट्वाइस एज दैट ऑफ इम्प्रूव न्यूबर चैम्बर. और यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो CSF के लिए ये बेटर है, ये कहते हैं. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ द CSF इज क्लियर वी विल नॉट डाइल्यूट इट. यूजुअली हम लोग डाइल्यूशन करते हैं ना इन एनी काइंड ऑफ अदर फ्लूइड. ये डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. एनी काइंड ऑफ फ्लूइड दैट यू एग्जामिन, इफ यू सी इन दैट वीडियो, एनी काइंड ऑफ फ्लूइड दैट यू एग्जामिन, यू ऑलवेज give a diluting fluid which is called as the Turk's fluid. Right? Why we give this? To kill the RBC, because we need to calculate, we need to see the WBC. That's why we are using the Turk's fluid to kill or destroy the RBCs. लेकिन CSF में हम लोग dilution नहीं करते हैं. If it is a clear CSF, we are not diluting it, and therefore the calculation is a bit different. We are not multiplying by any dilution factor over here. It is very plain and simple. But if it is turbid or cloudy, then we are again diluting it by that same process, by the Turk's solution in the 1:20 ratio. Same calculation, just as we do it in other cases of fluid examination. Right? Now, composition of Turk's fluid, I have written it over here. You can go through this: glacial acetic acid, methylene blue, and distilled water. ठीक है. नाउ यहाँ पर भी मैं यही बताने की कोशिश करूँगी, अगेन टू रीइंफोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इफ योर सेटर इज हैविंग ऑटोमेटेड सेल काउंटर, प्लीज यूज दैट. That is very very precise. It is more accurate, more rapid. Manual counting से ज़्यादा everyone, even I myself will prefer automated cell counting. ठीक है, अगर डाउट होता है तो ऑब्वियसली खुद देख लो यार, लेकिन पहले ही उसको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मशीन्स डू गिव अ लॉट ऑफ बेटर काउंट. ठीक है. नाउ कॉजेज ऑफ इंक्रीज सेल काउंट. तो पहले तुम हमको एक बात बता दो कि इफ द सेल काउंट इज इंक्रीज, नॉर्मल सेल काउंट कितना होता है? लेस देन 5. 0 to 5 इज द नॉर्मल रेंज. इतना आपको ल्यूकोसाइट और WBC जो कि आपको मिलने वाला है, विच इज द नॉर्मल काउंट इन द CSF. अभी हम लोग काउंट के बारे में बात कर रहे हैं, पैथोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इफ द CSF इज लेस, द काउंट इज लेस देन 5, इट इज नॉर्मल, बट वी कैन एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन द काउंट इन केसेस ऑफ meningitis, intracranial hemorrhage, in case of malignancy, obviously, then foreign substances, multiple sclerosis, and all these conditions we may expect an increase, right? तो अब हमको एक बात बताओ दैट ऑब्वियसली क्या हम लोग जब काउंट करते हैं तो क्या करते हैं? ऑब्वियसली वी मेक अ स्मीयर इन द सेम प्रोसेस लाइक इन एनी अदर फ्लूइड दैट वी डू. ठीक है, वो उस वीडियो को देखना है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया हुआ है.
ठीक है, चैनल पे वो वीडियो है रिगार्डिंग द फ्लूइड एग्जामिनेशन, मैं बार बार बोल रही हूँ इसको देखना है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बात मैं अभी फिर से बता देती हूँ कि आप क्या करने वाले हो, एक स्लाइड बनाने वाले हो जिसमें आपके पास में स्मीयर होगा एंड देन यू आर गोइंग टू स्टेन इट एंड सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप। उसमें आपको क्या मिलने वाला है, द डिफरेंशियल काउंट, द नॉर्मल डिफरेंशियल काउंट इज 70% lymphocyte and 30% monocyte in the children. The monocyte percentage may be high. Okay, I've already told you that if the CSF examination is having any kind of blast, we can suspect any kind of leukemia or metastasis over there. So in children, in case of ALL, that is usually done. Okay, now please understand that very important interesting point I just want to share with you guys, just for your practical knowledge, that if you see a very low CD4 CD8 count in cases of in the CSF, that hints towards HIV infection. ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ना बहुत डिफिकल्टी होती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन HIV एनकेफेलाइटिस एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, अदर में आपका जो इम्यूनोफेनोटाइपिंग है दैट कम्स हैंडी। सो CSF से आप इम्यूनोफेनोटाइपिंग भी कर सकते हो। इफ इट इज लो CD4 CD8 इट हिंट्स टुवर्ड्स HIV इन्फेक्शन। तो कितना ज़्यादा इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, मैं यही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड दिस टॉपिक इफ एनीथिंग इज आस्क्ड टू यू इन द एग्जाम, इन योर लॉन्ग क्वेश्चन, इन योर शॉर्ट नोट, ठीक है, इन योर वाइवा, इन योर प्रैक्टिकल्स, क्योंकि ये सब तो इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे लिए, योर सेंट्रल लैब, एनीथिंग एनीवेयर, दिस टॉपिक इज डन फॉर यू। जो भी है इसमें से एक भी शब्द बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, ओके, नाउ दैट पॉइंट विच आई वॉज डिस्कसिंग कि अगर मैं बोलूँ कि CSF में जो सेल है उसमें नॉर्मली क्या था, 70% वॉज लिम्फोसाइट, लेकिन यहीं पे अगर न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो गया, देन व्हाट विल हैपन, दैट इज बेसिकली योर मेनिंजाइटिस। विच टाइप? बैक्टीरियल। देयर आर अदर पॉइंट्स एज वेल, बट आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज कि बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल मिलता है। लिम्फोसाइट कहाँ पे मिलता है? वायरल में, ट्यूबरकुलोसिस में एंड फंगल में, मेनिंजाइटिस में। ठीक है, बाकी भी पॉइंट्स आप देख लेना। ठीक है, बाकी मिक्स पैटर्न तो तुमको किसी भी में मिल जाएगा। ठीक है, एंड इफ यू हैव पैरासाइटिक इन्फेक्शन देन यू गोइंग टू हैव प्रिडोमिनेंट इओसिनोफिल। सो प्लीज नोट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में प्रीडोमिनेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन वायरल न्यूट्रोफिल रिस्पॉन्स इन द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले एक दिन, फर्स्ट 24 आवर्स में न्यूट्रोफिल इज देयर, बट इट चेंजेस टू लिम्फोसाइट इन 2 to 3 days। ठीक है, एंड इन द फंगल यू गोइंग टू हैव मिक्स्ड सेल पैटर्न विथ प्रीडोमिनेंस ऑफ लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो ये सेल टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह का सेल दिख रहा है, कितना काउंट है, वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि 5 से कम होगा तो वो नॉर्मल है, ज़्यादा होगा तो यू हैव टू सस्पेक्ट समथिंग, यू हैव टू ब्रिंग अ डायग्नोसिस टू इट। अभी किस तरह का सेल आपको दिख रहा है उसमें सब कुछ बेस्ड है, and correlating with the history of the patient, age of the patient, you're going to arrive at a diagnosis. Now प्लीज लुक एट दिस इमेजेस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पार्ट, प्लीज लुक एट दिस। यही आपका सबसे ज़्यादा आप इसको याद रखने वाले हो, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इमेजेस इज द बेस्ट वे टू लर्न, सो प्लीज सी दिस। व्हाट इज दिस? व्हाट आर दी सेल्स? ये सब क्या है? ये सब क्या है? व्हाट आर दिस? दीज आर न्यूट्रोफिल्स, है ना? दीज आर न्यूट्रोफिल्स, राइट? तो ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? देखो कितना कितना सुंदर दिख रहा है न्यूट्रोफिल्स, है ना? और इतना ज़्यादा सेल काउंट है, इट इज़ नॉट लेस देन 5, इट इज़ वेरी वेरी मोर देन, इट इज़ वे मोर देन 5, राइट? तो ये क्या हो गया? बैक्टीरियल हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है भाई? ये तुम्हारा लिम्फोसाइट है और कभी कभी तुम्हारा मोनोसाइट भी है। दीज आर मोनोसाइट्स, ओके, दीज आर मोनोसाइट्स एंड दीज आर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा वायरल मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब हमको ये बताओ ये क्या है? बड़ा ही गंदा लुकिंग है ये ना। व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूप्लाज्म। ठीक है, सो दीज सेल्स आर मेलिग्नेंट सेल्स। ठीक है, सो दिस इलस्ट्रेट्स द neoplastic leptomeningeal spread with carcinoma of the cells. And what is this? What is this? This is erythrophage. Erythrophage. Remember, there are two cells. One is called as the erythrophage, one is called as the siderophage. These two are seen where? They are seen in the subarachnoid hemorrhage. Important thing. So please note, ऐसा सेल मिल जाएगा CSF में, तो ऐसा नहीं कहना कि मैंने कभी देखा नहीं है इसको, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। होता है, subarachnoid hemorrhage में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ प्लीज लुक एट दिस सेल्स। ये क्या है? तो दिख रहा है पूरा पूरा एकदम ही बैड लुकिंग, अगली लुकिंग सेल है। क्या है ये? ब्लास्ट है, ब्लास्ट है। एंड मोस्ट लाइकली दीज आर व्हाट? लिम्फोब्लास्ट। ठीक है,
तो ये हो सकता है कि ये ALL का CNS रिलैप्स हो सकता है. So these are the blast. But please be very very careful before you label something to be blast, because you're actually telling that the patient is having carcinoma or metastasis or whatever. Please understand there are a lot of mimics of this carcinoma, and we have to know that very very carefully. There are a lot of other cells which may look like the blast but they are not blast, and now we come to those images. तो पहले ही बता दो ये क्या है. These cells are not ugly looking, they are not malignant, they are normal. देखो कितना normal benign looking है भाई, ये तो बहुत अच्छा है. These are normal cells, these are not at all malignant, है ना. तो what are these cells? These are ventricular lining cells. They are ependymal or choroid plexus cells which are uncommonly seen in the CSF. भाई ये तो normally नहीं मिलता है CSF में, लेकिन ये अगर मिल जाता है then don't get confused and don't label this to be carcinoma or something like that. These are normal cells. ठीक है. क्या है? क्लस्टर्स ऑफ ब्लैंड अपियरिंग कॉलमनर सेल्स विद बेसली ओरिएंटेड राउंड न्यूक्लियाई. द ओवरऑल रेशियो इज लो एंड न्यूक्लियाई आर नॉट टिपिकली सीन. ओके, सो दे आर बेसिकली यूजुअली प्रेजेंट इन द क्लस्टर्स. दे आर बेसिकली वेंट्रिकुलर लाइनिंग सेल्स विच आर द एपेंडाइमल और द कोरॉइड प्लेक्सस सेल्स. ठीक है. सो ये बहुत ही नॉर्मल फाइंडिंग है, यूजुअली नहीं मिलता है, लेकिन हो सकता है कई बार व्हेन यू आर डूइंग द प्रोसेस कई बार ये सेल्स आ जाता है एंड देन दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन. तो इसको कंफ्यूजन नहीं है, आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होगा, आज के बाद ये गलती नहीं होगा कि इस तरह का सेल को हम ब्लास्ट नहीं बोलने वाले हैं. हो गया. लेकिन असली प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होता है? यहीं पे शुरू होता है. इसको बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? आई विल नॉट टेल दिस फर्स्ट. प्लीज लुक एट दिस इमेज एंड टेल मी व्हाट इज दिस. आपको ये देखकर लग रहा होगा ना कि ये ब्लास्ट है, आपको लग रहा होगा कि ये माइलोब्लास्ट है या लिम्फोब्लास्ट है, ऐसा लग रहा होगा ना आपको. नहीं भाई, व्हाट इज दिस? एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट. इसलिए मैं कह रही थी कि बहुत अच्छे से देखना है सेल्स को. देखो यार, किसी भी तरह की कंडीशन में लाइक मेनिंजाइटिस यूज से, हेमोरेज यूज से, इन्फेक्शन यूज से, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस यूज से, भाई लिम्फोसाइट जो है वो कहीं पर कभी भी एक्टिवेटेड हो सकता है बिकॉज दे आर इम्यून सेल्स, राइट. तो benign mimickers of malignant cells. I just cannot stress the importance of this point, that there are benign mimickers of malignant cells in which the first point is going to be your reactive lymphocyte. They are atypical looking and they are present mainly in cases of viral meningitis, and they have cytological changes which are striking and can closely mimic a lymphoid malignancy. Very very important. So this may look like myeloblast, this may look like lymphoblast to you. Most likely they will resemble a lymphoblast because they are atypical lymphocytes, and you are going to say that this is a relapse of ALL. You are going to say that this is a relapse of ALL. If you have a little bit of history, you will end up saying this. लेकिन आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री भी लेना चाहिए. ठीक है. तो पेशेंट को अगर हिस्ट्री में कुछ है ना, यू हैव टू हैव दोस फीचर्स, सिम्टम्स, उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा. ब्लास्ट में यू गोइंग टू गेट हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई. ठीक है. हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई आपको मिलने वाला है. थोड़ा बहुत लुकिंग जो है थोड़ा बहुत अगली लुकिंग होगा. ठीक है. जो ये बहुत ही एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मिल जाएगा. बट दिस इमेजेस शुड बी देयर इन योर ब्रेन. आई हैव टेकन द इमेजेस इन सच अ वे दैट दिस विल गिव यू कंप्लीट आइडिया. आप ये भी देखोगे ना बार बार तो भी आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस? अब आप मेरे को ये बताओ ये क्या है? ये भी क्या ब्लास्ट है? नहीं, ये भी ब्लास्ट नहीं है. ये क्या है? दिस इज अ क्लम्प क्लस्टर ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स. ठीक है. इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या हो गया है? एक इकट्ठे हो चुके हैं, क्लस्टर बन चुका है इसका. इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस dominated by macrophages, and now this macrophages is having a prominent nucleoli. Macrophages can be of any shape and size or it can have any feature. So macrophage में prominent nucleoli भी होता है, like you see this, है ना? Can you see this? Can you appreciate this? है ना? तो ये भी है. तो नाउ व्हाट विल यू से? यू विल से दैट भाई प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है, तो एकदम से ही हम इसको ब्लास्ट लिख देंगे. और इतना अगली लुकिंग भी तो है. इट इज़ वेरी अगली लुकिंग. एक जगह में सेल्स इकट्ठे हो चुके हैं, क्लस्टर बन चुका है. एकदम नहीं बोल सकते हो 3D क्लस्टर इसको. दिस इज नॉट अ 3D क्लस्टर एट ऑल. ठीक है. ये एक लूज क्लस्टर बन चुका है इन्फ्लेमेटरी सेल्स के क्लम्पिंग से, एंड नेवर एवर डायग्नोस दिस टू बी malignant. So I hope that I have been able to tell you that please don't get confused. ठीक है. तो अभी आप ये बता दो, ये बहुत आसान है. What is this? Plasma cell. What is this? Activated lymphocyte. And monocyte will also be present altogether. Diagnosis is viral meningitis, and these are the neutrophils. What is this? Normal lymphocyte. What is this? Activated lymphocyte. ये क्या है? ये नॉर्मल ही है. ठीक है. कई बार एक दो सेल्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं. इफ द काउंट इज नॉर्मल विद इन नॉर्मल रेंज, देन वी डोंट यूजुअली लेबल इट एज. एंड ऑल्सो टू लेबल समथिंग एज मेनिंजाइटिस ना, यू ऑल्सो हैव टू सी द सेल काउंट, सेल टाइप. ये तो आपको देखना ही है, ये तो हमारा काम है देखना. उसके साथ साथ ना जो बायोकेमिकल प्रोफाइल है ना, जो बायोकेमिस्ट्री का जो टेस्ट है ना, जैसे ग्लूकोज
फिर प्रोटीन, हम बताएंगे तुमको, ये सब भी तुमको चेक करना है, एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम देखना है बिफोर यू डायग्नोज समथिंग, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग पैथोलॉजी में जितना करते हैं सिर्फ वो देख कर डायग्नोसिस मत करो, ट्राई टू नो द एंटायर थिंग, ट्राई टू अप्रोच द पेशेंट होल कंप्लीटली, सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। लैब में जब जाओगे तो शायद बायोकेमिस्ट्री वाले लोग नहीं होंगे वहाँ पर, यू आर द पैथोलॉजिस्ट एंड वी हैव टू डू द वर्क ऑफ बायोकेमिस्ट्री पर्सन एज वेल, है ना, बिकॉज नाउ यू नो ना लाइक पैथोलॉजिस्ट, so they actually kind of are hired and they do the work of a lot of other things as well, ठीक है। So now we'll come to the chemical examination of CSF, very important. So starting with the chemical examination of CSF, protein ग्लूकोज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन में क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है 15 to 45। नॉर्मल प्रोटीन क्या क्या होता है एक बार देख लेना है, बट इट इज इंक्रीज्ड व्हेन meningitis, spinal cord tumor and also in cases of increased local immunoglobulin production in cases of multiple sclerosis, neurosyphilis, all these things, right? Very important, what is called as the albuminocytological dissociation. Albuminocytologic dissociation is refers to the increased protein in the CSF without any rise in cell count. So protein is increasing, right, but cell count is normal. तो इन दोनों के बीच में there is discrepancy, that is why it is called as the albuminocytologic dissociation. कहाँ पे मिलता है, GB syndrome, right? Along with that is also present in some other conditions as well. तो इसको वाइवा के लिए याद कर लो, conditions जो है it is not only present okay in GB syndrome, it is also present in some other syndromes, इसको भी नाम याद रख लो। Now glucose, ये तो बड़ा ही important है। यहाँ पर मैं तुमको पहले ही बता देती हूँ दैट इफ यू टॉक अबाउट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्या होगा यहाँ पे प्रोटीन्स जो की है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा 50 to 1500, ठीक है, बट ग्लूकोज इज वेरी रिड्यूस्ड लेस देन 40, ठीक है। तो यही दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड द TLC इज वेरी हाई TLC विद न्यूट्रोफिल्स, हो गया। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, दिस वन हो गया, इसका डायग्नोसिस कंप्लीट है एंड यू गोइंग टू गेट टर्बिड काइंड ऑफ अ CSF। नेक्स्ट, टीवी में आपको AB स्टेन करोगे तो अच्छा होगा, उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली इट इज इंक्रीज, द TLC इज इंक्रीज बट अगेन नॉट वेरी हाई, इट इज 100 to 600, दैट वन वॉज मोर देन 1000, bacterial was more than 1000, tuberculosis is 100 to 600, the proteins are obviously increased but not that much and the glucose is decreased but not that much like the bacterial one, ठीक है। वायरल में क्या होगा, ग्लूकोज जो कि वो नॉर्मल रहने वाला है, प्रोटीन्स विल बी इंक्रीज्ड बट ग्लूकोज इज नॉर्मल, ओके, एंड द WBC which is increased is going to be your lymphocyte predominantly in the later stages, right? Okay, so decreased CSF is present in what? In acute bacterial meningitis. So any kind of meningitis, glucose is basically decreased except viral one. ठीक है, normal range कितना होता है 45 to 80, ठीक है, less than 40 it is abnormal, right? Please see that you can do microbiological examination to see organisms, जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, वो that is a different sector, उसमें आपको माइक्रोऑर्गेनिजम्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो ये ज़्यादा कुछ आपको इसमें से जानने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, जितना आपको चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। नाउ देयर आर सम अदर काइंड ऑफ केमिकल इन्वेस्टिगेशंस व्हिच यू कैन डू। लेट्स टॉक अबाउट CSF lactate. What is this? The normal range is 9 to 26, but CSF lactate is increased in cases of meningitis. Which meningitis? Bacterial meningitis, but in viral meningitis it is reduced, right? So in case of bacterial it's increased, in viral it is reduced less than 25, and please see that consistently raised levels of CSF lactate is indicative of a poor prognosis in patients with head injury, okay? नेक्स्ट इज योर CSF एंजाइम्स। 2 एंजाइम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है एडिनोसिन डीअमीनेज और ADA, बहुत ही फेमस टर्म है ना ADA हाई कहाँ पे होता है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, खत्म। नेक्स्ट इज योर क्रिएटिनिन काइनेज। सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू नो व्हेनेवर देयर इज सेरेब्रल इश्केमिया ड्यू टू कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, तब ये इंक्रीज हो जाता है एंड दैट इज एन इन्वेस्टिगेशन और अ मार्कर, राइट। नाउ सम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एक बार सुन लो। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, CSF प्रोटीन का हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करने वाले हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मैं बताती हूँ। देखो, एक तो है तुम्हारा CSF लीकेज, तो जब CSF राइनोरिया होता है ना, तो हाउ विल यू कंफर्म कि यहाँ ये CSF राइनोरिया ही है, ये CSF ही है, हाउ विल यू कंफर्म दैट? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करते हैं हम, वी डू इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस विद इम्यूनोफिक्सेशन फॉर विच प्रोटीन, फॉर ट्रांसफेरिन।
And what does this show? This will show an extra transferrin band called as the tau protein, and this tau protein is absent in any other body fluid. तो इस तरह से अगर ये आपको मिल जाता है, अगर आपको tau protein मिल जाता है, तो you can confirmly say that yes, it is CSF rhinorrhea, क्योंकि ये बॉडी के किसी भी और फ्लूइड में नहीं मिलता है. राइट, इट इज क्लियर टू यू. Now, oligoclonal band, ये क्या होता है? ये agarose gel electrophoresis is used for detection of the oligoclonal bands. There are 2 to 3 discrete bands in the gamma region. तो अगर तुमको gamma region में कुछ extra whenever you're doing the electrophoresis process, then in the gamma region if you get some extra discrete bands, that would indicate that yes, there is presence of oligoclonal bands. And what is this indicative of? This is indicative of intrathecal synthesis of immunoglobulin. मतलब अंदर ही कुछ synthesis हो रहा है immunoglobulins का. कहाँ पे मिलता है? Multiple sclerosis also present in any kind of viral infection. ठीक है. So on this note, this completes this particular chapter and this lecture. All the important points from the clinical point of view, from your exam point of view, everything is given with a very precise note. तो इसको रिवाइज कर लोगे तो ये पूरा चैप्टर आपका कभी आप इसको भूलोगे नहीं है. जिंदगी में आगे जाके भी आपको इसको रिवाइज करते रहना है, because you need to learn about this. You need to remember these points for your exam. ठीक है. So I hope you enjoyed watching this lecture, and I'll take you leave today. I'll meet you very soon in my next video. Till then, take care, keep studying, and thank you for watching.